Today we are going to learn about uniform circular motion. So what do you mean by uniform circular motion? When a body moves along a circular track and if it covers equal distance in equal interval of time, it means if the body moves in a uniform speed or constant speed, then we can say that body is moving with uniform circular motion. Here you can see when a body moves in a circular path with uniform speed, uniform means constant, its motion is called uniform circular motion. Here you can see an object, suppose this is a circular track, okay, this is a circular track and object is at initial point, suppose A, okay. Now if it is moving with a uniform speed, suppose 30 km per hour, okay, 30 km per hour, after some time it reaches to point B. Here also speed is suppose 30 km per hour. After some time it reaches to point C. Here also speed, suppose the speed is 30 km per hour. And after some time it reaches to point D. Here also the speed is 30 km per hour. जब ऐसा स्पीड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वर्ड को याद रखना, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है वेलोसिटी नहीं, स्पीड मीन्स ओनली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओनली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हियर यू सी देयर इज नो डायरेक्शन, ओनली स्पीड इज सेम, बिकॉज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन एट पॉइंट ए? If you want to find the direction of the motion, means direction of velocity, so velocity, you know, velocity is vector quantity, velocity vector quantity होती है, speed scalar quantity होती है। speed की कोई direction नहीं होती है लेकिन velocity की direction होती है, okay. Here suppose at point A, what is the direction of velocity? We have to draw a tangent at this point or just draw perpendicular to radius. How to find the direction at point B? You have to draw a tangent at this point. Tangent means what? The angle between them is this radius and this velocity vector, that is direction of velocity is along tangential. At point C the direction is again tangential, at point D the direction is again tangential. How to make this tangent? Just make 90 degree with radius. This is the radius and this is the velocity direction. So you can see everywhere velocity is changing, and you know acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. Acceleration क्या होता है? velocity का change होना। तो आप एक चीज़ मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो इसकी हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। Every point the direction is changing. Every point. If you want to find the direction at this point, you have to draw at radius, and here you have to draw tangent at this point. हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। If you want to find the direction at this point, you draw radius and draw tangent at this point, means 90 degree to this radius. So the direction of velocity is going to change everywhere. So velocity is changing everywhere. Velocity is what? Velocity is speed with direction. Velocity क्या होती है? Speed plus direction, ठीक है, speed plus direction होती है। तो speed तो भले constant है, it is constant, that is everywhere the speed is 30, but the direction is changing, hence we can say uniform circular motion is accelerated motion. I repeat, uniform circular motion is accelerated motion, okay. You always remember that uniform circular motion is accelerated motion, क्योंकि हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मींस एवरीवेयर डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज सेम। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। एवरीवेयर स्पीड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, हेंस वी कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। हमेशा याद रखना। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, यू कैन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ,
आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है। नेक्स्ट, मून मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पाथ फॉलो करती है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, कहीं ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच। वॉच में देखे होगे जो घूमता है टिप ऑफ सेकेंड हैंड, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि 3 से 4 स्पीड से जाएगा, 5 से 6 धीरे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एवरीवेयर द स्पीड इज कांस्टेंट। मान लो एथलीट मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड। ऐसा कर सकता है कि कोई भी एथलीट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ फॉर मूविंग एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ वी नीड अ फोर्स। फोर्स की जरूरत होती है किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपली सर्कुलर मोशन के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लिसन टू माय वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force is the force which is required to move any object in circular path. अब है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, समझना मेरी बात को। सेंट्रीपिटल फोर्स इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक फोर्स होती है। फोर्स एक ऐसी फोर्स रेस्पॉन्सिबल फोर्स है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। सपोज दिस इज द रेडियस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 kg, ओके। तो और ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv²/r। r इज द रेडियस, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी। मीन्स यू डायरेक्टली टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज 30। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। Mind you my word, always remember that magnitude of velocity is speed. So you can directly find the force, centripetal force. Okay, we will learn everything about forces, that is in next chapter, that is in forces and laws of motion. We will learn everything. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको किसी और लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये सारी चीज़ें याद रखना। और इफ़ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग along a uniform circular motion. So speed formula is what? Speed is equal to v is equal to distance upon time. So any body which is moving along a circular path, what is the distance covered by that object? The distance covered by that object is 2 pi r. सर्कमफ्रेंस ही तो होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से गोल घूम करके यहाँ तक आ रहा है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज 2 pi r. टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर्कुलर मोशन में? सर्कमफ्रेंस होगा। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का? 2 pi r। डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन, then we can find the speed of any object which is moving along a uniform circular motion. ठीक है, ओके, थैंक यू।